1 year Bible reading plan, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, गैलेशियंस 6 चैप्टर 1 वर्स टू 18 वर्स, आइज़ाया 9 चैप्टर 10 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, गलतियों की पत्री 6 अध्याय 1 वचन से 18 वचन, यशायाह की भविष्यवाणी 9 अध्याय 10 अध्याय। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि हम मसीह के अंदर है और मसीह हमारे अंदर है। मेरे खुदा परमेश्वर, हम मसीह की महिमा करने के लिए हैं, हम मसीह के नाम से जीने के लिए हैं। हमारे अंदर से सब कुछ मसीह जहाँ पर है उस जगह से हमें पूरा करना है। कितना ही बड़ा रास्ता परमेश्वर ने हमको उसके प्रेम के साथ हमें दिया है। हम इस बात को समझ सके पिता, हम जो भी वचन इस पवित्र बाइबल में से पढ़ते हैं, आज पढ़ रहे हैं, मेरे पिता पवित्र आत्मा तुझसे विनती करते हैं, हम में वो वचन फिट एंड फिक्स कर। हम में वो वचन परमेश्वर जिस डेस्टिनी में, मंजिल में हमको पहुंचाना चाहता है, उस मंजिल में पहुंचने वाला व्यवस्थितपन हमारे अंदर लेकर आ, ऑर्डरलीनेस हमारे अंदर लेकर आ। पवित्र आत्मा, हम तुझ पर निर्भर है वचन समझने के लिए और उसमें फलवंत होने के लिए। हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा, नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। गैलेशियंस 6 चैप्टर, ही willeth, किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ रहे हैं, he willeth them to reform the faulty with gentleness and to bear one another's burdens, to be liberal to their teachers. First verse say, Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. For every man shall bear his own burden. Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap, if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Yea, see how large a letter I have written unto you with mine own hand. As many as desire to make a fair show in the flesh, they constrain you to be circumcised, only lest they should suffer persecution for the cross of Christ. For neither they themselves who are circumcised keep the law, but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh. But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision,
but a new creature. And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God. From henceforth let no man trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Unto the Galatians, written from Rome. हम गलतियों की पत्री 6 अध्याय पढ़ेंगे, पहले वचन से 18 वचन तक। BSI बाइबल में से गलतियों की पत्री 6 अध्याय 1 वचन से 18 वचन। एक दूसरे की सहायता करो। पहले वचन से पढ़ेंगे। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है, वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। 10 वचन से आगे, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया। अंतिम चेतावनी और अभिवादन 11 वचन से पढ़ेंगे आगे। देखो, मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं। केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए, क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे, उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिया फिरता हूँ। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन।